Good morning everyone. Welcome to the online classes of TMPS class 9. Today we'll be having a discussion over third chapter of history, that is Buddhism and Jainism. Basically we have finished 3 chapters. One chapter was basically the modern age in Europe, which is a further chapter. According to the number, this is the third chapter. So class 9, third chapter basically is Buddhism and Jainism. Now, I hope that previous 2 chapters were clear to you. If you have any problem, you can call me or text me. Now we'll be starting with Buddhism and Jainism. What happened that Jainism was the religion that was started first, then Buddhism. But today we'll be focusing on Buddhism first and then we'll be moving on to Jainism, because the broader portion is of Buddhism and then Jainism. Now, first of all, what was the need of the new religion? Why new religion came into being? नए religion की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों आया नया religion? अगर हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की, अगर हम बात करते हैं जैनिज़्म की, तो हमारे पास हिंदू religion तो थे. तो why it was needed कि new religion was to be made? So, the big reasons that the new religion was needed was first, corrupt practices in religion by the Brahmins. What happened? The Brahmins started exploiting the general masses and they started making fun of the rules and regulations. They started enjoying themselves. They started merrymaking. They wanted that there should be great sacrifices that should be given by the common people. The people were being exploited now. The farmers were being exploited and they were not given proper respect. What was told ki that attaining moksha was the sole need of a particular person. Basically कोई भी इंसान अगर जन्म लेता है तो बोलते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए. अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो, और you can say that the life cycle would end, जन्म और मृत्यु की चक्र से आज़ादी मिल जाना. तो मोक्ष का जो आप कह सकते हो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट था, द ब्राह्मण्स वर एक्सप्लॉइटिंग फॉर देम. एंड व्हाट दे डिमांडेड गोल्ड, दे डिमांडेड लॉट्स ऑफ जेम्स, ज्वेलरीज, एज वेल एज काउ. Farmers, they had cow as the only way from which they had survived in the society. That is why the people started opposing. Next was the Brahmins were teaching in Sanskrit and they were only teaching in Sanskrit, which was not understood by the common people. Common people को समझ में ही नहीं आता था, कुछ भी बोल देते थे. अब संस्कृत सबको नहीं आती थी. Next what happened that the study of the religion was only to the Brahmins. अब ब्राह्मण ने अपने ऊपर पूरा एक रख लिया शेल्टर कि हमारे अलावा कोई और तो धर्म की प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता. किसी को अगर बोले कि भाई हमें धर्म की शिक्षा दे दीजिए, पढ़ाई दे दीजिए, लाइए हम भी सीख लें, नो यू कैन नॉट, बिकॉज यू आर नॉट अ ब्राह्मण बाय बर्थ. That is why the people were being exploited. Idol worship was there. The people were not being given respect. That is why the need of new religion was there. अब लोगों को लग रहा था untouchability बढ़ रही थी, लोगों को enter नहीं करने दिया जा रहा था temples वगैरह में. तो what happened? The people thought that if such a religion is there, what's the need of this religion? और इसी वजह से जो दोनों के दोनों रिलीजन हैं, आपको पता चले दोनों के दोनों रिलीजन क्षत्रिय ने बनाए. क्षत्रिय जानते हैं? क्षत्रिय मतलब जो आपके वॉरियर की क्लास बोलते हैं, या आप कह सकते हो रूलिंग क्लास के पीपल हैं, उन्होंने बनाए. ये दोनों के दोनों राजा ही थे, राजा के पुत्र थे जो आगे चल के खुद राजा होने वाले थे, चाहे वो महावीर हों, चाहे हमारे गौतम बुद्ध रहे हों. तो ये दोनों ने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया फॉर द न्यू रिलीजन और एनलाइटेंड हुए. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट गौतम बुद्ध इन दिस चैप्टर. What happened that Gautam Buddha basically is a great personality in our Indian society, because he not only made the new religion, but what happened, his teaching is very simple. What happened that Jainism and Buddhism both started. Jainism started first, Buddhism started later on, but Buddhism became more popular than Jainism due to certain reasons. We'll be discussing that one by one. First of all, let us start with the life of Buddha. एक स्टोरी है, स्टोरी की तरह सुनिए, समझिए. What happened that there was a king whose name was Shushodhana. एक किंग थे जिनका नाम था शुशोधन और उनकी वाइफ का नाम था माया. इनके घर एक बहुत ही आप कह सकते हो खुशहाल घर था. इनके राज्य को शाक्य क्लैन कहते थे. इसीलिए आपको मालूम होगा, बहुत से जगह आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध इज नोन विद द नेम ऑफ शाक्य मुनि.
इनका जो क्लैन था, क्लैन मतलब ट्राइब वॉज द शाक्य ट्राइब। कपिल वस्तु इनकी कैपिटल थी, वहीं पे लोग राज करते थे। और जो माया थी वो लुम्बिनी से बिलोंग करती थी। लुम्बिनी इज़ अ प्लेस इन नेपाल एट दिस मोमेंट, नेपाल में ये प्लेस है। अपने मैके जा रही थी। इट वॉज बीन टोल्ड कि इनका जो पूरा का पूरा जन्म हुआ वो जन्म था आपका 480 BC में। ये 480 BC में जन्म लिए 8 अप्रैल में। और ये आप कह सकते हो कई जगह पे अलग अलग डेट्स में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, विकीपीडिया से इसको आपको आप कह सकते हो नॉलेज मिली है इसमें। क्या मेरा नाम रोशन करे, मुझसे भी बड़ा राजा बने और बहुत ही ज़्यादा क्या बने, ब्रेव बने, स्ट्रॉन्ग बने, बहुत ज़्यादा एम्पायर्स को क्या करे, कैप्चर करे। वॉट हैपेंड, वहाँ पर एक दिन उनके दरबार में एक मुनि आए जिनका नाम था असित मुनि, एसेटिक, इनको बोलते हैं एसेटिक। एसेटिक मतलब मुनि, सेंट। ये आए और असित मुनि इनका नाम था, एसेटिक सेंट को कहते हैं बेसिकली। तो ये जब आए यहाँ पर और उन्होंने कहा कि राजा तुम्हारे घर में एक बेटे का जन्म हुआ है, मैंने सुना। राजा ने कहा हाँ मुनिवर, आप उसे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बहुत बड़े मुनि थे। जब उनके पास लेके गए तो मुनि ने आशीर्वाद देने के बजाय उनको अपने सर पे उनके पैरों को लगा लिया और बेसिकली उनसे कहा कि राजा तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा योगी होगा और पूरी दुनिया के लोगों का मन बदल देगा। अब राजा को लगा यार मेरा बेटा योगी, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये तो इतना बड़ा राज्य का राजा बनना चाहिए, ही मस्ट बी अ ग्रेट वॉरियर रादर देन अ ग्रेट एसेटिक और अ सेंट। तो सुशोधन व्हाट डिड ही डू, ही क्रिएटेड अ आर्टिफिशियल वर्ल्ड। आर्टिफिशियल वर्ल्ड मतलब क्या था कि इन्होंने जितने भी बूढ़े, जितने भी बीमार ये लोग थे, इनको अपने शहर के बाहर कर दिया, शहर को अलग एकदम पेंट करवा दिया। अपने बेटे को अपने महल से जाने ही नहीं देते थे और अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा भोग विलास, लग्जीरियस लाइफ जीने लगवाने लगे। और बेसिकली ही वॉज लिविंग अ मेरी लाइफ, ब्यूटिफुल लग्जीरियस लाइफ। बट वॉट हैपेंड, द डेस्टिनी, जो उसकी डेस्टिनी थी, जो उनकी पूरी पूरी आप कह सकते हो किस्मत थी, वो उनकी तरफ लेके जा रही थी। अब नाउ वॉट हैपेंड, बेसिकली व्हेन सिद्धार्थ वॉज ग्रोइंग, तो उनकी शादी करा दी कि भाई अपने शादी हो जाएगी, ही विल बी बिजी इन हिज वाइफ चिल्ड्रंस, तो फिर से भाई हो सकता है कि ये सब धर्म कर्म की बातों में ना जाएं। तो यशोधरा नाम की लेडी से उनकी शादी करा दी। अब वो प्रिंसेस जो थी उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। अब राहुल रखा गया। बेसिकली व्हाट हैपेंड, गौतम बुद्धा वाज लिविंग अ लाइफ बट ही वाज नॉट हैप्पी। अब इनका एक फ्रेंड था और इनका चैरियट भी वही था, चैरियट ड्राइवर जिसे बोलते हैं। चैरियट ड्राइवर मतलब जानते हैं ना, रथ चलाने वाला। और इनका फ्रेंड भी था क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड थे, तो अपना फ्रेंड मानते थे, जिसका नाम था चरना। चरना नाम था उनका। और वो चरना के साथ एक दिन अपने आप कह सकते हो रथ पे निकल पड़े और दूर दूर तक कहे लेके चलो, आज मुझे दूर लेके चलो जहाँ पे चीज़ें दिखाई दे जो सच हो। अब what happened that when Gautam Buddha reached different places, so he saw different scenes. उन्होंने कुछ different scenes देखे जिससे उनकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना गया है इन बुद्धाज लाइफ बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म द माइंडसेट ऑफ बुद्धा। कहते हैं इन्होंने 4 ग्रेट साइट्स देखी, 4 ग्रेट साइट्स देखी जिससे कि इनका पूरा लाइफ बदल गया। पहला इन्होंने एक बीमार इंसान देखा। ही वॉज ओल्ड एंड आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा बीमार थे। ही वॉज वेलिंग इन पेन, चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से पेन में, और बूढ़े से इंसान थे। अब इनको लगा यार आज तक मैंने इतना देखा ही नहीं, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो क्या इसकी डेथ होने वाली, बहुत बूढ़ा सा इंसान है, मृत्यु होती है। तब इनको लगा यार ये क्या होता है, तो मैंने कभी ज़्यादा जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। नेक्स्ट इन्होंने देखा कि दैट देयर वॉज अ पर्सन who was having no clothes, who was having basically no food and he was having a happy time, मस्ती में घूम रहा था। कौन होता है ऐसा इंसान? एक एसेटिक, या आप कह सकते हो एक मैड पर्सन जिसे लोग कहते हैं। वो आराम से घूम रहा है, उसके पास ना कपड़े हैं ना पैसे हैं ना कुछ है, लेकिन तब भी खुश है। अब ये भी देख के बुद्धा आश्चर्य में कि अरे यार किसी के पास कुछ नहीं है तो भी वो क्यों हैप्पी। नेक्स्ट इन्होंने देखा कि देयर वॉज अ डेड बॉडी एंड पीपल वर गोइंग अराउंड दैट डेड बॉडी, वो लोग डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। अब वो बंदा बेसिकली ही वॉज ऑन दैट लास्ट राइड। इसके बाद इन्होंने कुछ बिल्ली के बच्चों को देखा। अब what happened when these sights was being seen by Buddha, the whole mindset change, इनका दिमाग में तो नई नई चीज़ें चलने लगी।
एंड फाइनली एट द एज ऑफ 29 की एज में, जब इनको बोलते हैं द ग्रेट रिनंसिएशन, क्या बोलते हैं इसको, द ग्रेट रिनंसिएशन, 29 की एज में बुद्धा ने अपने किंगडम को, अपने पूरे राज्य को, कपिलवस्तु को छोड़ दिया। वो रात ही रात अपनी वाइफ को बताकर निकल गए कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस लाइफ एंड आई वॉन्ट टू सर्च द ट्रुथ, जिसको बोलते हैं ना सत्य की तलाश में निकलना चाहते थे। अब what happened when Buddha basically left the palace in search of truth? तो it was being said कि 6 लंबे साल, 6 long years he spent in devotion, learning. अब बुद्धा भाई he was a great personality, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी पिकअप करते थे, सीखते थे, और 6 सालों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद वो इन 6 सालों में फाइनली ये बोध गया में एक ट्री है जिसका नाम है बोधि ट्री, उसके अंडर कहा जाता है 7 वीक्स तक लगातार विदाउट एनी फूड ये बैठे थे और मेडिटेट कर रहे थे। और फाइनली इनको क्या मिल गया, संपूर्ण ज्ञान, दैट इज नोन द होल नॉलेज, ही बिकेम द एनलाइटेंड वन, इसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। व्हाट हैपेंड, देयर वाज एनलाइटमेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की लाइफ में एनलाइटमेंट आ गया, ही बिकेम द एनलाइटेंड वन, जिन्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब व्हाट हैपेंड दैट बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी ये समझिए। बुद्धा वाज बेसिकली अ बिलीवर दैट देयर शुड बी नो आइडल वर्शिप, देयर शुड बी नो कास्ट सिस्टम। अब बुद्धा जो अपनी ट्राइब्स बना रहे थे, प्लस अपना जो आप कह सकते हो इनकी जो पूरी की शाखा होती, ये जो शाखा में ये एवरीबडी वॉज एक्सेप्टेड इन दैट, एंड इट वॉज नॉट सेड कि कोई 1 person वुड बी देयर, एवरीबडी वॉज बेसिकली इन्वाइटेड एंड एवरीबडी वॉज एक्सेप्टेड। इसमें न कास्ट, न कलर, न क्रीड, न मेन, न वुमेन, सब कुछ ज्वाइन कर। नेक्स्ट वो आइडल वर्शिप के खिलाफ, मैंने बताया कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, रिचुअल्स के खिलाफ थे। Next, he did not wanted that teaching should be in any language that should not be understood by the people. ऐसी teaching होनी चाहिए that is understood by the people, जैसे पाली, प्राकृत, उस समय की बेसिक लैंग्वेज थी पाली, प्राकृत, उसमें टीचिंग होनी चाहिए। सो बुद्धा बेसिकली, और बुद्धा और जैनिज्म में डिफरेंस बहुत बड़ा क्या था कि जो जैनिज्म था दैट बिलीव्ड इन पेन एंड सफरिंग, वहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन था कि मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब हम बहुत सारी सफरिंग को झेलें, जब हम बहुत सारी सफरिंग अपने अंदर ले लें, और फाइनली फिर जब भगवान खुश हो जाएंगे, जब हम अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पेन देंगे, तब हमें जाकर मोक्ष मिलेगा। लेकिन बुद्धा ने कहा कि वन कैन अटेन मोक्ष लिविंग अ कॉमन मैन्स लाइफ। बुद्धा की ये बात बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई। बुद्धा ने कहा कि दैट अगर कोई आम इंसान अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जिए तो अपनी ज़िंदगी को जीते जीते वो मोक्ष अटेन कर सकता है। ना फॉरेस्ट में जाना है, ना हार्ड सेक्रीफाइसेस करने हैं, ना पेनेंस देना है बॉडी को, ना सफरिंग लेनी है। अब ये चीज़ें लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी और बुद्धा के फॉलोअर्स बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे। पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा। फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा यानी बुद्धा की पहली प्रीचिंग। बेसिकली दिस प्रीचिंग स्टार्टेड इन द डियर पार्क एट सारनाथ। सारनाथ एक जगह है बनारस, आपके वाराणसी के पास, जहाँ पे डियर पार्क है। वहाँ पर इन्होंने अपने 5 अनुयायी यानी डिसेपल्स, उनको इन्होंने सबसे पहले शिक्षा दी, और उसमें इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स का जिक्र किया। बहुत इंपॉर्टेंट नोबल ट्रुथ्स हैं, ये बेसिस है बुद्धिज्म। What he told, the world is full of suffering. पहला क्या बोला उन्होंने, the world is full of suffering, मतलब कि दुनिया पूरी तरह से सफरिंग से भरी हुई है। सफरिंग ही सफरिंग है पूरी दुनिया में और कुछ नहीं है। सेकेंड उन्होंने बोला the suffering are the result of desire। अब क्या बोला, सफरिंग तभी पैदा होंगी जब आपकी इच्छाएं होंगी। सिंपल सी चीज़ है। दुख कब होता है, जब कभी बुरा कब लगता है, सिंपल समझो, जब आपको 500 रुपये चाहिए अपनी मम्मी से और मम्मी बोली नहीं दूंगी, सो आप कहे हे मम्मी मैं बड़ा दुखी हो गया। सफरिंग बेसिकली एक एग्जाम्पल है। जब आप कोई चीज़ चाहें और ना मिले तो वो बहुत बड़ी सफरिंग का कारण होता है। थर्ड बुद्धा ने क्या कहा, दैट सफरिंग कैन बी एंडेड बाय किलिंग डिजायर्स। चलो अब बुद्धा ने एक ये भी बात बताई कि भाई सफरिंग अगर एंड करना चाहते हो बालक तो अपनी इच्छाओं को मार दो।
अब भैया कैसे मार दें? तो उसके लिए भी बताए बुद्धा, बोले कि वन कैन किल द डिजायर बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। अब उन्होंने एक 8 सूत्रीय कार्यक्रम जिसे कह दें या 8-fold पाथ कह दें, जो इन्होंने कहा फॉलो करो, एंड इफ एनीबडी फॉलोज दैट दे कैन अटेन मोक्ष। सो व्हाट हैपेंड, 8-fold पाथ में इन्होंने राइट कंडक्ट, राइट बिलीव, राइट नॉलेज, राइट मेडिटेशन, राइट टुवर्ड्स योर नेबर्स, सारी चीजें बताएं, लव टुवर्ड, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, सारी चीजें बताएं। अब इसके बाद जो बुद्धा थे, इनकी टीचिंग्स फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, लैक्स में इनके नंबर पहुंच गए, और जो इनका आप कह सकते हो क्लैंग था, इनकी जो आप कह सकते हो सभाएं थी, बढ़ती चली गई, एंड ही बिकेम टू नोन एज शाक्य मुनि। और उनकी टीचिंग्स, उनके जो आप कह सकते हो बिहेवियर था, दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और इनकी जो पूरी की पूरी कहानियाँ हैं, इनकी पूरी की पूरी आप कह सकते हो कहानियाँ हैं, इनको जटका टेल्स कहा जाता है। अभी आप कभी नेट पे चेक करो, जटका टेल्स, जटका टेल्स जितनी भी हैं सब गौतम बुद्धा की कहानियाँ हैं, जो गौतम बुद्धा ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज का कलेक्शन है, आप सब इस समय लॉकडाउन में पढ़िए, उसे फ्री है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इन 400 BC, बेसिकली क्या हुआ, 400 BC में जब 80 साल की लगभग उम्र थी गौतम बुद्धा की, ही डाइड। गौतम बुद्धा डाइड इन कुशीनगर, कुशीनगर यूपी में एक जगह है, वहाँ पे उनकी डेथ हुई। एंड एट द एज ऑफ 80 बेसिकली ही टुक हिज लास्ट गल्फ्स। इनकी बॉडीज़ के रिलिक्स अभी भी संभाल के रखे गए हैं, माना गया है, अलग अलग स्तूपाज में इसको रखा गया है। सांची स्तूपा एक है, जिसको सबसे बड़ा वर्ल्ड का डोम शेप स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, दैट वाज बिल्ड बाय अशोका। ये जो आप कह सकते हो बेसिक फ्लरिशमेंट ऑफ बुद्धिज्म के बारे में है, विल बी डिस्कसिंग दैट। अब इसके बाद सेक्ट्स ऑफ बुद्धा, बेसिकली द बुद्धिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, महायाना एंड हिनायना। जो बुद्धिज्म है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, कौन कौन से, महायाना और हिनायना। महायाना और हिनायना में डिफरेंस क्या है? महायाना वर द पीपल हु बिलीव्ड दैट बुद्धा वाज अ गॉड, और उन्होंने उनकी आइडल वर्शिप स्टार्ट कर दी और बोला कि ये बोधिसत्व है। बोधिसत्व मतलब ये एक भगवान का रूप है, भगवान के ही जन्म है, और इन्होंने इसीलिए इनकारनेशन लिया है क्योंकि ये लाइफ में भगवान सिखाना चाहते हैं। और यही बेसिक अंतर है हिनायनाज में। हिनायना ने कहा कि नहीं, ये एक इंसान थे जिन्होंने लाइफ को जीने का तरीका सिखाया। यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन 2 ऑफ देम। आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक आज का हम लोग बात करेंगे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म पे। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इज अ ब्यूटीफुल आप कह सकते हो जर्नी दैट टुक प्लेस अंडर वेरियस बिग किंग्स सच एज अशोका, कनिष्का, हर्ष। ये बड़े बड़े किंग अपने अपने समय के हुए जिन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, फैलाया। और अशोका को तो आप जानते हैं, सांची स्तूपा की हमने बात करी, सांची स्तूपा इन्होंने डेवलप कराया, अपने बेटे महेंद्र, अपनी बेटी संघमित्रा को जगह जगह भेजा, सो दैट व्हाट कैन हैपन कि दैट दे कैन स्प्रेड बुद्धिज्म, कि वो बुद्धिज्म को बढ़ा सकें, फैला सकें और ग्रो कर सकें। अब इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए। कनिष्का के समय में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ अंडर द बुद्धिज्म। एंड हर्षा के समय तो आपको मालूम ही है, फाहीन वाज आल्सो अ पर्सन हु केम, ही वाज अ चाइनीज पिलग्रिम हु केम टू इंडिया। फो को की इन्होंने एक किताब लिखी थी फाहीन ने, जिसमें इन्होंने पूरे अपने इंडिया के एक्सपीरियंस को शेयर किया। एंड बुद्धिज्म बेसिकली वाज अ स्प्रेड इन दैट पीरियड। ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ बुद्धिज्म। इसमें आपने अजंता एंड एलोरा केव्स के बारे में नाम सुना होगा। ये जो केव्स हैं इसमें भी लॉर्ड बुद्धा के बारे में ही और उनकी लाइफ की टीचिंग्स और उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में पूरी की पूरी फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। फ्रेस्को पेंटिंग्स आर स्पेशल पेंटिंग्स विच आर बीन बिल्ड विद द colors of natural flowers, leaves, as well as from the plaster of Paris which were made at that time, जो आज से बहुत साल पहले बनाया गया, जहाँ पे लाइट भी आज नहीं अवेलेबल है। समझिए कितनी डिफ़िकल्टी से बनाया गया हो। So I hope this topic is clear to you. This is a very interesting topic. Go through the video once again. After that, in the next part, we'll be discussing about Jainism and similarities and dissimilarities between Buddhism and Jainism. If you like this video, please press the like button, subscribe this channel.